یونین اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف گھی کا ریٹ دیکھیں آپ، اور جب عمران خان کی حکومت میں یہ لوگ مہنگائی مکاؤ 5 لے کر نکلتے تھے، نالائق ہیں، اور یہ لوگ خود کو تجربہ کار کہتے تھے. ان لوگوں کے لیے صرف کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ آج کیوں خاموش ہیں؟ ایک عمران خان تھا جو تھوڑی سی مہنگائی اگر ہوتی تھی تو جانا نہیں ہے. میرے پاکستانیوں تھوڑا سا گیا 8 لاکھ سے 11 لاکھ تک، اس کے علاوہ سبسڈی دی گئی. میرے پاکستانیوں آج وہی چیزیں ہیں، وہی پاکستان ہے. مہنگائی اور ان تجربہ کاروں کی سب سے درخواست کروں گا، آج جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے تھے ان سے تو انہوں نے رائے اختیار ہمارے ساتھ استقبال کیجیے گا. یہ جو مہنگائی اور اسی کے خلاف پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہیں کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلیں، کیونکہ کو جمہوریت میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے احتجاج کا جو صرف اور صرف اپنے مقدمے، اپنے کیسز، نیب کے کیسز، NRO لے مہنگائی کی دلدل میں دھکیلے ہوئے ہیں اور عوام کی پریشانیوں کا ہے. گروسری کرنے سے وہ قاصر ہیں اور بچوں کی فیسیں دینے سے قاصر ہیں. جو خان صاحب کی کال بھی آئے گی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں، ہم سب نے اس میں اکٹھے ہو کے چلنا ہے اور اس سے ہم نے واپس بھیجنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے راجہ شیراز کیانی ہمارے درمیان اسلام آباد ریجن میں. میں دعوت خطاب دوں گا، استقبال کیجیے گا. تالیاں دی بجائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ہوسٹ عامر شیخ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ندیم بھائی ٹریڈرز کی طرف سے، تنویر قاضی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، شیراز کیانی، علی وان صاحب کہہ رہے ہیں سب کو پتہ ہے ان کا تعارف نہ کراؤ. تو میرے بھائیوں علی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بیسک آج پاکستان میں جس غریب کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے اس کا 21,000 روپیہ بل آ گیا ہے. آج جو 200 یونٹ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں ایک کمرے کا جو بل ہے وہ 200 یونٹ بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم غریب کو جو دے رہے ہیں سبسڈی. وہ لوگ 6 ماہ کے تسلسل کی جو بات کی تو اس پہ 4 روپے یونٹ جنہوں نے بڑھا دی. تو میرے بھائیوں یہ گھس بیٹھی سرکار کے خلاف جو آج عامر شیخ صاحب نے جو جلسہ رکھا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اس چیز میں ان کا ساتھ دیتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں کہ واقعی اس گھس بیٹھی سرکار کو پاکستان کے اقتدار کو چھوڑنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو مقبول لیڈر ہے، جو عوام کا پسندیدہ لیڈر ہے، وہ آئے اور پاکستان میں آ کے لانگ ٹرم پالیسیز بنائے اور پاکستان کا جو بیڑا پار کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے MNA علی نواز اوان اور انجم عقیل کو اگر آپ آپس میں کمپیئر کریں تو اس یونین کونسل کی اگر آپ مثال لیں تو یہ 3.5 سالوں میں آپ کے MNA علی نواز اوان نے یہاں پہ روڈ کارپیٹ کی، یہاں پہ آپ کو جو لائٹس کا پرابلم تھا وہ ٹھیک کر کے دیا، آپ کی مین 7th ایونیو کے پروجیکٹ کیے، آپ کے سامنے کی بات ہے جو مین کشمیر ہائی وے پہ جو برج ہے اس کا کام کر کے دیا. G7 کے 6 پارک ہے، 6 کے 6 پارک اس نے نئے کر کے آپ کو دیے. یہ فرق ہے گھس بیٹھی سرکار کا اور عمران خان کے سپاہی کا. میرے بھائیوں یہ جو ہمارا آج کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر ہماری سینئر قیادت کے اندر بے انتہا تشویش تھی کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر یہ ہمارے G7 کی میں بات کرتا ہوں، 90% لوگ یہاں پہ سرکاری امپلائیز ہیں، اور سرکاری امپلائیز بھی وہ جو گریڈ 5 تک ہیں، 1 to 5 تک. اور یہاں پہ روز کے یہ میں معاملات دیکھتا ہوں کہ تنخواہ تو ہے 25,000، بجلی کا بل آیا 35,000، اسکول کے بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے، میڈیسن کا خرچہ کہاں سے کریں گے. وہ دیکھ کے جو یہاں پہ ہمارے حالات ہیں، اس پہ ہماری سینئر قیادت نے، علی وان صاحب نے پرسوں میٹنگ کی
शेड्यूल दिया और अली भाई ये 6 घंटे के नोटिस पे G7 के लोगों ने आपकी कल कॉल पे लबैक की है और G7 से ये तरीके इंसाफ का आप लोग वो हर अव्वल दस्ता हो जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना टैक्सेस बेईमाना इनका जो तर्ज अमल है, बजाय इसके कि कोई इंडस्ट्री लगाते कोई जॉब देते, इन्होंने लोगों से कहा कि इनका सांस भी खींच लें। लोगों को थोड़ी डिटेल से बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डॉलर का रेट भी स्टेबल था, बिजली के यूनिट भी आज से आधी कीमत में मौजूद थे। आज अगर हम सारे टैक्सेस कैलकुलेट करें तो हमारा एक बिजली का यूनिट 60 रुपए का पड़ता है और ये रेजिडेंशियल यूनिट है। कुछ सोच सकता था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर पानी बेच बाय ज़राई कंट्री है और आपका यूनिट 60 रुपए का होगा। ये कर क्या रहे हैं? IMF से भी डील हो गई, डॉलर आ गए। सैलाब की वजह से जो इमदाद मिलनी थी पाकिस्तान को वो भी मिल गई। लोग सोच रहे थे कि डॉलर नीचे आएगा, महंगाई नीचे आएगी, लेकिन तो उसके बरक्स डॉलर 30 रुपए ऊपर चला गया। आटा कराची में 130 रुपए चला गया और आज हमारे G7 में इस्लामाबाद के अंदर रोटी का 6 रुपए रेट बढ़ गया। तो मेरे दोस्तों, इंपोर्टेड सरकार का शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं कि जो भी पाकिस्तान के अंदर पैसा आया, बजाय इसके कि लोगों की फलाह बहबूद पे लगाते, वो भी इन्होंने बाहर इंपोर्ट कर दिया। जिस तरह खुद इंपोर्टेड है, उस तरह जो पाकिस्तान का कर्ज का था और जब एड आई थी उसको भी बाहर इंपोर्ट कर दिया। उसकी वजह से महंगाई नहीं रुक रही। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसका सुबह को रुपए का रेट कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। 10-10 रुपए। अभी पिछले दिनों मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो रोजाना 10 रुपए हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा था। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो 230 रुपए पे पाउंड था, वापिस आया तो 292 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद यह है कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना तो दूर की बात, ये सोचते भी नहीं है कि हमारा गरीब पिस रहा है, हमारे लोग पिस रहे हैं। ये वाहिद तहरीक इंसाफ है। ये मेरा लीडर है, मेरा लीडर इमरान खान है और उसके अरवल दस्ते का हमारा लीडर अली अवान, असद उमर और ये हमारी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आप लोग दिन रात कोशिश कर रहे हो। यही एक उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना हक खुद अब आगे बढ़ के छीन के लेना है। Additional General Secretary, UC 30. Imran Ali Gujar, Senior Vice President, UC 30. Additional General Secretary, Madam Rifat Khan, Vice President. Habib Kazmi, Mohammad Adil Rajput, Vice President. Nasir Khan Masood, Senior Vice President. Mr. Kashan Ali, Joint Secretary. Danish Ali, Joint Secretary. Mr. Adil Gujar, Deputy General Secretary. Muhammad Fahad, Senior Vice President. Mr. Umar Aman, Senior Vice President. Chaudhry Shahbaz, Senior Vice President. Mr. Sultan Beg, Babu Bhai, Vice President. Mohammad Yamin Bhai, Senior Vice President. Asad Khan Sahab, Senior Vice President. Mr. Salim Saudra, Minority Wing के हमारे लीडर हैं ये, Vice President, Senior Vice President. Mr. Sibat Rizwan, Senior Vice President. Mohammad Shoaib, Joint Secretary. बाकी बाद में तनवीर भट्टी साहब भी माइनॉरिटी विंग के हमारे दरमियान आ चुके, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रीजन के, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, आप स्टेज खाली कर दीजिए। इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट साबका NA53 के MNA आप लोगों के दरमियान भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। अली नवाज अहमद। आमिर आपको, नुमान आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम खवातीन जो इस UC की, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी छोटी मतलब 5-6 घंटे की नोटिस पे आपने इतना ज़बरदस्त G7 में जलसा मुनक्किद किया। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
टाइम आपको पता है हमेशा ही कभी इधर से उधर उधर जाना पड़ रहा होता है, टीवी शोज होते हैं, पर ये बात बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमने ये कॉल दी थी। आपके सामने है, जितना मैं क्योंकि सरकारी अफसर का बेटा हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ, जितना जितना इन सियासी अफसर को होता है या ऑफिस स्टाफ को होता है, उतने पूरे पाकिस्तान के आम लोगों को नहीं होता। ये बाशऊर लोग होते हैं, इनके हाथों से चीज़ें जारी होती हैं। इन्होंने हुकूमतें आते देखते हैं, ये हुकूमतें जाते देखते हैं, नई हुकूमत आते देखते हैं, लोगों को अपोजिशन में जाते देखते हैं, हर अमल पे इनकी नज़र होती है। आज 5.5 महीने के लगभग टाइम हुआ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म हुए। 5.5 महीने पहले क्या हालात थे, मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। 2018 में हमारी हुकूमत आती है, मुश्किल हालात होते हैं। आप में कई लोग होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते होंगे, कोई कॉमर्स के अंदर काम करते होंगे, कोई इंडस्ट्री के अंदर काम करते होंगे, कोई FBR के अंदर मुलाजिम होगा, इनकम टैक्स का मुलाजिम होगा, कोई प्लानिंग का मुलाजिम होगा। ये तमाम वो मिनिस्ट्रियाँ जो पाकिस्तान के फैसले करती हैं। इंटीरियर के अंदर जो मुलाजिम होंगे वो यहाँ बैठे होंगे। ये वो तमाम मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान चलाती हैं। तो 2018 में हमारी हुकूमत आती है, सबसे बड़ा उस वक्त जो खतरा होता है वो डिफॉल्ट का होता है। 20 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट 64 अरब डॉलर के। आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर गैप कितना है? आपकी जो रिमिटेंस है, जो बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे आपके भाई जिनको यहाँ नौकरियां नहीं मिली, जिन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला, कोई बिजनेस नहीं मिला, कोई दिल से तो बाहर नहीं जाता। बाहर वही लोग जाते हैं जिनका पाकिस्तान में कोई बस नहीं चल रहा होता, बड़ी मुश्किलात से बाहर पहुंचते हैं। वो टोटल 18.5 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, जो पाकिस्तान के अंदर चीजें बनती हैं, वो पीपल्स पार्टी के टाइम से भी 1.5 अरब डॉलर कम होकर 23.5 अरब डॉलर पे आ चुकी होती हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर मशहूर होता है कि यहाँ सुसाइडल बमर बनते हैं, कहीं धमाका होता है पाकिस्तान का नाम पहले आता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ होता है। हमारा पूरी दुनिया के अंदर मोदी एक पूरी कैंपेन चला के हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे चुका होता है। फैटफ के अंदर हम ग्रे लिस्ट के अंदर जा चुके होते हैं। उस टाइम पे 2018 में वजीर आजम इमरान खान साहब बनते हैं और उसके साथ ही कोरोना आ जाता है, उसके साथ ही लोकस की बीमारी एग्रीकल्चर की आ जाती है। पर आप लोग ये देखते हैं कि इमरान खान हर महाज पे लड़ता है, हर महाज पे, चाहे वो इस्लामोफोबिया का महाज हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का महाज हो, चाहे वो इकोनॉमी का महाज हो, चाहे वो कोरोना का महाज हो, चाहे वो लोकस का महाज हो, चाहे वो दहशतगर्दी का महाज हो, हर महाज पे इमरान खान डट के खड़ा होता है। और उसका नतीजा क्या होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है। तीसरे साल कोरोना के बावजूद हम 5.5% ग्रोथ पे जाते हैं, जो पहले साल 1% होती है। चौथे साल हम 6% पे जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंपोर्टेड रजीम के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 की पेश की थी असेंबली के अंदर, कि आप 6% पे ग्रो कर रहे होते, नई सनत लग रही होती, छोटे कारखाने चल रहे होते हैं, 55 लाख नई नौकरी मिल रही होती है। हमारा काश्तकार 1100 अरब नया रूरल इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट होता है। हमारे काश्तकार 4.4% से ग्रो कर रहा होता है। गन्ने के काश्तकार को कीमत मिल रही होती है और कारखाने को भी पैसे बच रहे होते हैं। गंदम जो हमारा बेसिक आटा, उसकी जो प्राइस है, वो जो उसको हम कंट्रोल प्राइस कहते हैं, वो बढ़ा के हम 2000 रुपया फिर 2200 रुपया करते हैं, जिससे काश्तकार की आमदन में इजाफा होता है। कपास को दोबारा रिवाइवल होता है, उसकी हम एक प्राइस 5000 कंट्रोल प्राइस रख देते हैं कि इससे नीचे इसकी प्राइस नहीं हो सकती है। लोकस का हम मुकाबला करते हैं। इस्लामोफोबिया पहली दफा उम्मत मुस्लिमा में हमारे पास बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, किंगशिप्स हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग हैं वहाँ, पर कभी किसी ने सुना? कार्टून बना देते थे, हमारे दिल को ठेस पहुंचती थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम बात नहीं सुनना चाहते किसी के मुंह से, उनके वो कार्टून नाउजुबिल्लाह बना देते थे।
पूरा पाकिस्तान जल जाता था, यहाँ छुट्टियां हो जाती थी, पर दुनिया में कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था कि हमारे गोरी चमड़ी वाले हमसे नाराज ना हो जाएं। आपके सामने इमरान खान केस उठाता है, उनका यूनाइटेड नेशन में जाता है। आपके सामने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हमारा साथ देता है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद हमारे साथ खड़ा होता है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हमारे साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो के बाद इस तरह की फॉरेन पॉलिसी किसी जमात की नहीं रही। और क्या होता है कि 15 मार्च यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास होती है, जहां इंडिया भी बैठा है, जहां इसराइल भी बैठा है, जहां यूरोप भी बैठा है, उसके बावजूद दुनिया की सारी सुपर पावर, दुनिया के तमाम मुल्क इमरान खान की दलील पे जाते हैं और इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च का दिन रखा जाता है कि आइंदा कोई माइका लाल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से खान कह रहे हैं, 20 साल से कह रहे हैं ये जंग हमारी नहीं है। कोई भी पाकिस्तान 9/11 में शामिल नहीं था। 1.5 लाख मुसलमान पाकिस्तानी शहीद होता है, 200 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और यहाँ हमारे हुक्मरान विकीलीक्स में आता है कि सारे मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो उसमें शायद पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा, पता है, मौलाना फजलुर रहमान से पूछना पड़ेगा, शेख रशीद से। कहने का मकसद ये सब लिख के देते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करते रहो, हम ऊपर ऊपर से मजम्मत करेंगे, हम इसको मना नहीं होने देंगे। और इमरान खान आता है, ट्रंप ट्वीट करता है डू मोर, खान कहता है नो मोर। और पाकिस्तान पहली दफा निगोशिएशंस में बैठता है, नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलती हैं, पीसफुल विड्रॉल होता है और इमरान खान का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजता है। कोरोना जब ये मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल भुट्टो तकरीर करता है असेंबली के अंदर कि बंद कर दो पाकिस्तान को, लॉकडाउन कर दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कोई सांस लेने भी बाहर ना निकल सके। क्यों? कि कोरोना ये नहीं देखता कि वो अमीर को लग रहा है, गरीब को लग रहा है, वो हर इंसान को लग जाता है। वो आते भी नहीं देखता, वरना इनको ना लगता। अगर बुरे आते वालों को ना लगता होता तो हमारी किसी ऑपोजिशन की पार्टी को ना लगता। होता क्या है कि इमरान खान कहता क्या है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही होती है और इमरान खान लॉकडाउन नहीं करता है। आज पूरी दुनिया क्या कहती है कि इमरान खान के वो फैसला, जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मुल्क हैं जो कोरोना वबा से भी लड़े, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव किया, उनमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके बाद खान लोगों को वैसे नहीं छोड़ता, एहसास प्रोग्राम लेके आता है। 2 करोड़ 44 लाख खानदानों को 2 करोड़ 44 लाख खानदानों को 264 अरब रुपया थंब इम्प्रेशन के थ्रू आपके सामने पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ। WHO कहता है जो ये स्टिमुलस पैकेज दिया गया और जो एहसास पैकेज लोगों तक पहुंचा, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर राज्य नहीं है। इमरान खान उसके बाद खान पाकिस्तान की आवाम को यहाँ नहीं छोड़ता। एहसास पैकेज के तहत एहसास हेल्थ कार्ड लेके आता है। हर पाकिस्तानी शहरी जो बालिग है और उसकी फैमिली है, उसको 8 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस देता है। आप लोग सरकारी अफसर हैं, सरकारी महकमों में होते हैं, आपके भाई कोई पंजाब में रहता होगा, कोई सिंध में रहता होगा, कोई बलोचिस्तान में, कोई KPK में, उनसे पूछें कि जो बंदा सिर्फ पैसे ना होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाता था, आज वो खान को हाथ उठा उठा दुआएं देता है कि वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज होता है, उसका ऑपरेशन होता है। जहाँ पैसे देने वाला लेटा होता है, वह एहसास इंश्योरेंस कार्ड वाला साथ लेटा होता है। ये है खान। उस वक्त कहते थे, हमारे मीडिया के भाई यहाँ खड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर ये नाराज हो जाते हैं। ये
وہ کہتے تھے پاکستان تباہ ہو گیا. پاکستان میں تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کوئی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم اس وقت کہتے تھے یہ عالمی مہنگائی ہے. آپ کے دور جو پرانا دور تھا نون لیگ کا, اس میں $65 فی بیرل تک پیٹرول گیا ہے. ہمارے دور میں $105 سے $115 فی بیرل گیا, اور پوری دنیا کے اندر گیا ہے. ویٹ پرائسز زیادہ ہو گئی ہیں, سپر سائیکل آیا ہوا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کورونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی ہے, اس لیے مہنگائی ہے. وہ کہتے تھے نہیں, 6 منٹ. اس کو بھی بلاؤ نا, اس کو بلاؤ ساتھ میں. 5 منٹ ہے, میں نے نکلنا, میرا وہ شو ہے. ہاں مجھے عامر نے بتایا. شو ہو گئی, یہ ختم ہو گئی. No issues. You are glued to me. From last 10 years. You like it or not? Who is on? When I feel secure, I can. فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی بھی کھڑی ہے آپ کے ساتھ. میں تو امید کہا ہے, انہوں نے بڑے افسروں کی 150% تنخواہ بنا دی, غریب آدمیوں کی 1% بھی نہیں بڑھی. یہ چیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے. غریب اگر آپ کا خریداری کرنے میں وہ ماسٹر ہیں نا, انہوں نے بڑے افسر بھی خرید لیے ہیں. اس طرح ہائی لائٹ کریں تھوڑا سا اپنے طریقے سے. ٹھیک ہو گئی تھا. اچھا, میرے پاس تھوڑا 5 منٹ ہے, اس کے بعد میں نے نکلنا ہے کہ افتتاح کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمپیریزن. ہم پاکستانی بھول جاتے ہیں, لوگوں کی غلطیاں بھول جاتے ہیں, اچھا ٹائم بھول جاتے ہیں, برا ٹائم بھول جاتے ہیں. بڑے دل والے لوگ ہیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یونٹ کتنے کا تھا؟ 16 روپے کا. کیا کہتے تھے؟ مہنگائی ہے. مجھے بتائیں, آٹا 55 روپے تھا, آج کتنا ہے؟ 125 میں بھی نہیں مل رہا. ڈالر کتنے کا تھا؟ 178 کا. آج کتنے کا ہے؟ 245 کا بھی نہیں مل رہا. روز جاتے ہیں, آفس جانا ہوتا ہے بھائیوں آپ, کیونکہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بچارے وہ 5واں گریڈ 10واں گریڈ میکسیمم 14ویں گریڈ والے لوگ بیٹھے ہوں گے. کام یہ کرتے ہیں اور تنخواہیں بڑوں کی بڑھ جاتی ہیں 150%, اور کام کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو پاکستان کا اس سے پہلے اصول رہا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. برابر کی سطح پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر ان کی بڑھی ہیں تو آپ کی بھی اتنی بڑھنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں, پیٹرول روز جلواتے ہیں, 150 روپے لیٹر تھا, آج کتنے؟ 250 روپے, 236 روپے پریسائز. اور کل انہوں نے بڑا احسان کیا آپ لوگوں پہ, 8 پیسے سستا کر دیا ہے. یہ تو دوسری ہو رہی نا. تو بھائیوں, ہمارے دور میں جو صحافی تھے, جو دانشور تھے, جو تجزیہ نگار تھے, جو کالم نویس تھے, کیا کہتے تھے؟ ایک ہو گئی ہے اذان. تو بھائیوں, میں آخر میں ایک بات کروں, پھر میرے کو ٹائم ہو گیا کہ میں آپ سب اجازت چاہتا ہوں. اذان کا ٹائم ہے, پر جب بھی خان صاحب کال دے اس مہنگائی کے خلاف, اس امپورٹڈ رجیم کے خلاف, آپ سب نے نکلنا ہے. اور جب بھی الیکشن آئے آئندہ, نون لیگ والے ووٹ مانگنے آئے تو انہیں کہیے گا میرے بجلی کا بل جمع کرا کے آنا, پھر میں تمہیں ووٹ دوں گا. تھینک یو. بہت شکریہ MNA 53 جناب علی نواز امان صاحب.